Good morning students. In our previous video, we have done various rules for writing the electronic configuration. We have also done electronic configuration of elements with atomic number 1 to 10. Today we will take 20 more elements and we will write their electronic configuration. That is from elements with atomic number 11 to 30. So let us do. We have done that various rules for writing the electronic configuration, and these rules were Aufbau principle, Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli exclusion principle, and n plus l rule. Following the n plus l rule, the order for writing the electronic configuration is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, and so on. We have done that in s orbital, maximum electrons can be only 2. In p orbital, maximum electrons can be 6. In d orbitals, maximum electrons can be 10. And in f orbitals, maximum electrons can be 14. S subshell have only one orbital and it can accommodate maximum 2 electrons. P subshell has 3 orbitals and they can accommodate maximum 6 electrons. D subshell has 5 orbitals and they can accommodate maximum 10 electrons. F subshell can accommodate 40 electrons because it consists of 7 orbitals. Because it consists of 7 orbitals. So let us write electronic configuration of elements with atomic number 11 to 30. Sodium atomic number 11, we have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. I am writing the order again: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, like this. This is the order for writing the electronic configuration. S can accommodate 2 electrons, this S will accommodate 2 electrons, this P will accommodate maximum 6 electrons. ठीक है, 10 electrons are done and we have left with only 1 electron and 1 electron will come in 3s. So electronic configuration of sodium will be this. Next is magnesium with atomic number 12. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ठीक है, atomic number 13. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2 बेटा कंप्लीटली फिल हो चुका है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 3p में, 3p1. उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ठीक है, उसके बाद फास्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. उसके बाद बेटा सल्फर एटॉमिक नंबर 16. तो 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. उसके बाद बेटा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. कंफर्मेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. क्लोरीन के बाद क्या आएगा? आर्गोन एटॉमिक नंबर 18. कंफर्मेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, अब यहां पर देखो जो 3p सबशेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड. अब हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर 19 की. क्लोरीन, आर्गोन, आर्गोन का क्या करना? पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19. ठीक है, कंफर्मेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p के बाद बेटा किसमें फिलिंग करते हैं? 4s में. तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद कैल्शियम
दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 11 to 20। बेटा हमने कल नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 ये लिखी थी बेटा हमने, एटॉमिक नंबर 10 था। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि नियोन क्या है, नोबल गैस नियोन 10 लाइक दिस, नियोन 10, ठीक है। इसी तरह क्योंकि आर्गोन भी क्या है, आर्गोन भी क्या है बेटा नोबल गैस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं आर्गोन 80, ठीक है बेटा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, क्लियर। ये नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लियर है बेटा। अब तक हम यहां तक ऑर्बिटल्स फिल कर चुके हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इसमें 3D में, ठीक है। 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं दैट इज इन एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 21 to 30। 21 की बात करते हैं बेटा। 21 किसका होता है, स्कैंडियम का, स्कैंडियम, ठीक है। कनेक्शन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। स्कैंडियम के बाद क्या आएगा, टाइटेनियम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वेनेडियम, उसके बाद क्या आएगा, क्रोमियम, उसके बाद क्या आएगा, मैंगनीज, उसके बाद क्या आएगा, आयरन, उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट, उसके बाद क्या आएगा, निकल, उसके बाद क्या आएगा, कॉपर 29, उसके बाद क्या आएगा बेटा, जिंक, ठीक है। टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वेनेडियम की क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। क्रोमियम की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते तो क्या लिखते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते क्रोमियम की, बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम इज रॉन्ग, ठीक है। क्रोमियम का बेटा एक्सेप्शन केस होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में 4s2 3d4 नहीं होती, लास्ट में 4s2 3d4 नहीं होती, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअल में क्या होती है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। This is the correct electronic configuration of chromium, ठीक है। अब ऐसा बेटा क्यों हुआ है वो उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है आगे जंप करके कहां पर जा रहा है बेटा, 3d5 में। 4s का एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके कहां पर जा रहा है, 3d5 में, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे 3d में क्यों गया है, ठीक है, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे। आपने ये ध्यान रखना है, क्रोमियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होती, क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस होता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस। अब क्योंकि क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस था, मैंने यहां पर बेटा स्टार लगा दिया, एक्सेप्शनल केसेस का। अब बात करते हैं मैग्नीज की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां से आ रहा 3d1 3d2 3d3 3d4, यहां पर क्या आएगा बेटा 3d5। ये है मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आयरन की होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कोबाल्ट की होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकल की होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d8, कॉपर की होगी बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी, मगर कॉपर का भी बेटा एक्सेप्शनल केस होता है, कॉपर की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है तो कॉपर के ऊपर भी स्टार बना होते हैं। अब कॉपर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है तो कॉपर की एक्चुअल कन्फिगरेशन बेटा क्या है, देखो क्रोमियम में मैंने क्या बताया था, ये क्या है लोन कन्फिगरेशन। एक्चुअल करेक्ट कन्फिगरेशन क्या होती थी, 4s का एक इलेक्ट्रॉन, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है आगे जंप करता था इनटू 3d, तो 4s में कन्फिगरेशन बचती थी 4s1, तो 3d में हो जाती थी 3d5। ठीक है, सेम यहां पर होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से जंप करके कहां पर चला जाएगा 3d में, यहां पर भी 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा 3d में, तो कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। This is the correct electronic configuration of copper। अब कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जिंक की। ठीक है, जिंक की करेक्ट कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, 4s2, 3d10। क्लियर बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 21 to 30, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इन एलिमेंट्स को बेटा आप कैसे लर्न कर सकते हो, एक ट्रिक है, शक्ति विक्रम, फिक्कू, निकू, जिंकू, शक्ति विक्रम, फिक्कू, निकू, जिंकू। क्लियर बेटा, इस ट्रिक से आप इन एलिमेंट्स के नेम लर्न कर सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है बेटा, मैंने इन एलिमेंट्स में बताया क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक है जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में वो कन्फिगरेशन नहीं होती। एक्चुअल कन्फिगरेशन क्रोमियम की होती है दिस वन, और कॉपर की होती है दिस वन। दोनों में ही क्या हुआ है बेटा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप किया है 3d के अंदर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की जंप क्यों हुई है उसका हम रीजन समझते हैं। क्रोमियम में बेटा क्या हुआ था, कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4, बट ये कन्फिगरेशन नहीं हुई। एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या थी इसकी 4s1 3d5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है आगे जंप कर गया था फ्रॉम 4s to 3d। कॉपर की कन्फिगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d9, बट ये कन्फिगरेशन भी कॉपर की नहीं होती। कन्फिगरेशन क्या होती है 4s1 3d10। This is the correct configuration of chromium and copper, जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया था। अब इसका रीजन क्या है वो हम समझते हैं। आपको पता है 3D सबसेट के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 3D के 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब अगर 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, सिमेट्री नहीं बन रही। सिमेट्री नहीं बन रही क्योंकि सिमेट्री मींस या तो हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्री तब बनती है, और आपको केमिस्ट्री में पता है सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। और आपको ये भी पता है एवरी सिस्टम वांट्स टू बिकम स्टेबल, एवरी सिस्टम वांट्स टू बिकम स्टेबल एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, क्रोमियम की अगर कन्फिगरेशन ये होती है 3D में इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं लाइक दिस, और 4s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 लाइक दिस। ठीक है, तो इस केस में बेटा क्योंकि 3D में सिमेट्री नहीं बन रही, ये क्या है लेस स्टेबल है। ठीक है, तो क्रोमियम अपने आप को मोर स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, 3D में सिमेट्री
देता है, 3D में सिमेट्री क्रिएट कर देता है। वो कैसे? इसमें क्या होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला जाएगा, 3D में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के केस में बेटा क्या हो जाएगी, 4s में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, ओनली 1, और 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3D की कन्फिगरेशन क्या होगी, 3D 5, और 3D 5 आप देख रहे हो एक सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है। सिमेट्रिकल मींस सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड मींस ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड। ठीक है, 3D 5 हैज सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कन्फिगरेशन एंड दिस कन्फिगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि सिमेट्री बन रही है एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दैट इज व्हाई 3D 5 इज स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से 3D में जंप करवा देता है, बिकॉज दिस जंप लीड्स टू सिमेट्री एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, एवरी सिस्टम वांट्स टू बिकम स्टेबल एंड क्रोमियम becomes stable by shifting the electron from 4s to 3D. ठीक है, this leads to 3D 5 configuration and 3D 5 configuration is half filled stable configuration. That is why correct configuration of chromium is this 4s1 3D 5, क्योंकि 3D 5 बेटा क्या होती है, half filled स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा, ये तो बात होगी क्रोमियम की। क्रोमियम में मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में जंप क्यों करता है, क्योंकि जंप करने के बाद 3D में क्या बनती है, सिमेट्री। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, एंड देयरफॉर टू गेन द स्टेबिलिटी electron from 4s jumps to 3D and correct configuration of chromium is this. ठीक है, this is wrong configuration, this is correct configuration of chromium. क्लियर है? तो बेसिक रीजन अगर हम यहां पर पता करने की कोशिश करें तो बेसिक रीजन क्या है, chromium wants to become stable. ठीक है, that is why it makes the electron jump from 4s to 3D because it leads to symmetry and symmetry leads to stability. क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा कॉपर की। कॉपर में मैंने आपको क्या बताया है, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s to 3D9, मगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दिस 4s1 3D10। ठीक है, उसका रीजन क्या है, देखो हम समझते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 9 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करोगे, पहले सभी ऑर्बिटल्स से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 5, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, 6 7 8 9। ठीक है, ये है 4s to 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, 3D9। ठीक है, अब ये देखो आप 3D9 में कोई सिमेट्री नहीं है, ना ही सभी ऑर्बिटल्स पे एक इलेक्ट्रॉन है और ना ही सभी ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन आगे 3D में जंप करता है तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, 3D में सिमेट्री क्रिएट होगी। सभी 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, लाइक दिस। तो यहां पर भी बेटा सिमेट्री क्रिएट होगी और सिमेट्री बनी है तो मतलब यहां पर स्टेबिलिटी अचीव होगी। ठीक है, तो कॉपर अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में जंप करवाता है, क्योंकि इस जंप के कारण 3D बिकम्स सिमेट्रिकल, उसमें फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होती है। दिस इज फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस सिमेट्रिकल फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिमेट्रिकल फुली फील्ड
configuration, and this symmetrical fully filled configuration is extra stable. Clear? And copper wants to become stable, and it becomes stable by promoting the electron from 4s to 3d. ठीक है, and that's why 3d becomes fully filled and it becomes stable. क्लियर बेटा? क्रोमियम और कॉपर दोनों ही अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d में शिफ्ट करवा देते हैं, क्योंकि इस शिफ्टिंग से बेटा क्या होता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होती है। क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड और कॉपर के केस में फुली फील्ड। ठीक है, ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर है? It means chromium and copper has exceptional configuration because they wants to become more stable, and this stability is achieved by promoting electron from 4s to 3d. ठीक है, अब बेटा एक रीजन और बताता हूं कि why this 3d5 configuration is more stable than 3d4 configuration. क्रोमियम में configuration 3d4 क्यों नहीं हुई, 3d5 क्यों हुई? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 3d5 configuration is more stable, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, उसका एक रीजन मैं आपको और बता रहा हूं। द रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है पहले तो समझ लेते हैं। इट इज द amount of energy released when an electron is exchanged in its degenerate orbitals. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने बेटा आपको कल बताया था, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट हैव सेम एनर्जी एंड दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे p के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। जैसे सपोज करते हैं p के ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है, इस एक्सचेंज से बेटा क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है बेटा? अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में से अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो एक एक्सचेंज एनर्जी तो यहां पर आएगी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होता है, तो एक एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, दिस। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इस कितने में बेटा, E + E दैट इज 2E। क्लियर है? तो हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि 3d5 के केस में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3d4। ठीक है, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एंड मोर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मोर इज द प्रोसेस फेवरेबल। ये आपको पता है, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। 3d5 के केस में क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ ली। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सचेंज्ड इन इट्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब हम 3d5 की एक्सचेंज एनर्जी देखते हैं कितनी होगी। This electron can be exchanged with this electron। ठीक है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होता है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है और इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E। समझ रहे हो? इसका एक्सचेंज इसके साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ एक्सचेंज होता है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E, और अगर इसके साथ एक्सचेंज होता है, अगेन एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E, ठीक है। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ एक्सचेंज होता है तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू E। समझ रहे हो? हमने हर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करवा के जितनी टोटल एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कितनी आएगी? E ये सभी E को हमने ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पर कितनी आई थी बेटा? 4, यहां पर कितनी आई थी? 3, यहां पर कितनी आई थी? 2 और यहां पर कितनी आई थी? 1। 4 + 3 7, 7 और 3 10, ठीक है। तो D5 की एक्सचेंज एनर्जी कितनी है बेटा? 10 E। 3D4 की बात करते हैं। 1 2 3 4 and 5 like this। इसकी एक्सचेंज एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। एक एक्सचेंज यहां से हो सकता है, एक एक्सचेंज यहां से हो सकता है, एक एक्सचेंज यहां से हो सकता है। तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई? E + E + E, ठीक है। तो यहां पर तो 3 आ गए। अब बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सचेंज हो सकता है, यहां से एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो कितने एक्सचेंजेस आ गए? 2, ठीक है। और बात करते हैं इस तीसरे इलेक्ट्रॉन की। तीसरा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ एक वेव एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी रिलीज कितनी आ गई? E। तो टोटल एक्सचेंजेस बेटा कितने होंगे? टोटल एक्सचेंजेस आर टोटल एक्सचेंजेस आर 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी बेटा? 6E, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 2 के साथ हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 1 के साथ हो सकता है। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी आएगी बेटा? 3 + 2 + 1 दैट इज 6E, ठीक है। अब क्योंकि 3D4 की एक्सचेंज एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू 3D5, दैट इज व्हाई 3D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3D4, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी के कांसेप्ट से भी हमने यही बताया है कि 3D5 में क्योंकि ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं, its exchange energy is higher than 3D4 and that is why 3D5 configuration is more stable than 3D4। पीछे मैंने क्या रीजन बताया था कि 3D5 की बेटा सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होती है, that is why it is more stable। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 3D5 की बेटा एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, that is why it is more stable। क्लियर है बेटा? तो बेटा क्या बताया मैंने? क्रोमियम और कॉपर दोनों की ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है बिकॉज़ दे वांट्स टू बिकम स्टेबल एंड स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय प्रमोटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d। क्लियर है बेटा? दिस इज केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। रिमेनिंग पार्ट वी विल डू टुमारो।